Welcome, guys. Welcome to Study More. This is Dr. Anil. Welcome to Study More, right? S- So, guys, important students and doctors, just listen. Today's lecture is going to be a very important for you all. Okay, very important. So, do concentrate और स्टार्ट से एंड तक देखना, एक भी चीज़ मिस मत करना, एक भी चीज़ मिस मत करना। मैंने ये वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, 2-3 बुक्स ढूंढे हैं, इंटरनेट का यूज़ किया है। सो सारा कुछ मैंने ये वीडियो बनाने के लिए यूज़ किया है। टेक्स्ट बुक्स तो यूज़ किए ही किए हैं, और अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए और आपको समझाने के लिए बहुत मेहनत की है मैंने इस वीडियो में। So guys, don't miss any word from this video, this lecture. Okay guys, so and this lecture is going to be very important for you to understand pharmacology. ये अगर आपको नहीं पता चलेगा तो आपको फार्माकोलॉजी अच्छे से नहीं आएगी, माइंड माय वर्ड। If you don't understand these things, your pharmacology concept is not going to get more clear, just because of just you lack this kind of knowledge. Okay, और यही एक लेक्चर है जिससे आपको आपके प्रैक्टिस में जो मेडिसिन्स दिख रही है या फिर जो मेडिसिन्स आपको पता है वो मेडिसिन किस तरीके से काम कर रही है, क्योंकि मैंने इसके अंदर क्लिनिकल कोरिलेशन भी आपको एक्सप्लेन किया है उसी के साथ साथ। सो गाइज, डोंट मिस दिस लेक्चर टू स्टार्ट। थोड़ा सा लेंदी होगा ये लेक्चर बिकॉज मुझे कंटिन्यूटी चाहिए, दैट्स वाई आई एम गोइंग टू मेक दिस बिट लेंदी। ओके गाइज, सो सॉरी फॉर दैट। अगर आपको ज़्यादा स्लो लग रहा होगा, मैं थोड़ा सा स्लो जाऊँगा, बिकॉज अगर आपको स्लो लग रहा होगा तो आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करके बार बार सुन सकते हो। और दूसरी चीज़, अगर आपको फास्ट लग रहा होगा तो आप रुका रुका के या फिर स्लो स्लो प्लेबैक में भी देख सकते हो, राइट। सो इसके अंदर हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाले आयनाइजेशन, राइट, आयनाइजेशन ऑफ ड्रग। सो वो आयनाइजेशन ऑफ ड्रग के लिए हमें बहुत कुछ पहले जानना होगा, राइट। सो दैट थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी राइट नाउ। सो स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट में आपको दिखेगा कि मैंने यहाँ पर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा है, राइट। सो दिस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन is because sorry this drug administration may be by IM, may be by per oral, etc. Okay, so उसका फिर बाद में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, राइट। वेयर व्हाट इट डज देन, it get absorbed, right? So once it get absorbed, then it goes to the blood, right. In blood, what it do, it gets bound to the plasma, right. It gets bound to the plasma. It's bound to plasma. So this is bounding drug. This drug is bound. Okay, this is bound to plasma. Second, which is not bound to plasma, we called it as free drug. Okay, this is not bounded to plasma. Plasma means plasma protein. Okay guys, plasma protein, not bounded to plasma protein. This is bounded to plasma protein, this plasma protein. So this is how it get distributed in plasma. ओके, सो दो तरीके के होगा। दूसरा, उसके बाद, ओके गाइस, सो आफ्टर दैट दिस सम अमाउंट ऑफ दिस
drug. Okay guys, this is bound and this is non-bounded and this is bounded. Okay, so from this unbounded drug, okay, from this unbounded drug, free drug, okay, some goes to the tissue storage. Okay, some goes to the tissue storage, free or bounded drug both. Then some goes to the only free drug goes to the site of action. Okay, only free drug goes to the site of action. Then after that, it's two more things is there. The drug get metabolized by liver, lung and blood. Okay, so these drugs get metabolized also. Okay, so after metabolites it forms metabolites, right? So these metabolites can be anything, means like who can these metabolites can excreted in urine, bile, feces, sweat and saliva. Okay, so where this it forms the metabolites. Metabolites means what? दिस ड्रग गेट्स द मेटाबॉलिज्म होता है इसके ऊपर. मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो प्रोडक्ट होता है दैट फॉर्म्स अ मेटाबोलाइट्स. दैट प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे हम? मेटाबोलाइट्स. और ये मेटाबोलाइट्स एक्सक्रीट होगा. कैसे होगा? यूरिन के थ्रू, दूसरा बाइल के थ्रू, फेसेस के थ्रू और स्वेट के थ्रू और सलाइवा के थ्रू, राइट? So all these are the pathways through which it gets metabolites, it gets secreted. Okay, then after so gets excreted. So then there is drug excretion. Okay, so this drug excretion is by renal, biliary or exhalation. Okay, these are 2-3 routes: renal, biliary, exhalation, etc. and this urine and all these things also. Okay, so all these things this is the excretion, this is also excretion. Okay, okay, I hope you understood this. फिर से बताता हूँ. सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले ड्रग एडमिनिस्टर हुआ, राइट? ओरली लिया, समझो ओरली लिया. सो वो स्टमक में जाएगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिर बाद में जाएगा एब्जॉर्प्शन इनटू प्लाज्मा. ठीक है, प्लाज्मा में जाने के बाद प्लाज्मा में उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा बताएं. सो प्लाज्मा में उसका डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से होगा, राइट? एक तो प्रोटीन को बाउंड हो जाएगा वहाँ के, और दूसरा अनबाउंड रहेगा, राइट? सो इतना याद रखना कि तुम्हारा जो मेडिकल इफ़ेक्ट है या जो भी तुम ट्रीटमेंट देने वाले हो, समझो 500 mg की तुमने पैरासीटामोल दवाई दी है, राइट? उसमें से समझो, हाँ जस्ट एग्जांपल है ये, 400 mg इज अनबाउंडेड. Okay, so only this 400 mg is going to make effect. Okay, so तुम्हारा थेरेपेटिक इफेक्ट कौन लाएगा? दिस अनबाउंडेड ड्रग ओनली, दिस फ्री ड्रग ओनली. Okay, this free drug only going to make a therapeutic effect in the body. This 100 mg which is bound, this will not have a therapeutic effect in our body. Okay, यहाँ तक समझ गया? Okay, आगे. So आगे चलते हैं. सो आगे आपको अभी उसका दिस ड्रग, ये ड्रग का एक तो टिश्यू स्टोरेज होगा, राइट? और दूसरा होगा ये जाएगा एक साइट ऑफ एक्शन के लिए. दो जगह जाएगा ये. एक जाएगा टिश्यू स्टोरेज के यहाँ पर, दूसरा थिंग वो जाएगा साइट ऑफ एक्शन के यहाँ पर, राइट? टिश्यू स्टोरेज देन साइट ऑफ एक्शन. सो ये है टिश्यू स्टोरेज, ये है टिश्यू स्टोरेज, ये है साइट ऑफ एक्शन. ओके, सो देन
उस जिस समय फिर बाद में इसका मेटाबॉलिज्म भी होता है। सो मेटाबॉलिज्म, ड्रग मेटाबॉलिज्म होगा। ड्रग मेटाबॉलिज्म किस किस से होगा? ड्रग मेटाबॉलिज्म होगा ओके गाइज, लेट मी टेल यू अगेन दैट जब भी हम ये ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे बॉडी में, लाइक ओरली लिया, ओरली ड्रग गया, राइट। सो वो फर्स्ट फर्स्ट विक्टर वगैरह ज़रा छोड़ दो, फिर बाद में वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, लास्ट में प्लाज्मा में आएगा। वंस इट गेट इनटू द प्लाज्मा, सो उसका प्लाज्मा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो बताता हूँ। सो प्लाज्मा डिस्ट्रीब्यूशन उसका, एक तो वो प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन रहते हैं, राइट। सो प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन रहते हैं उससे बाउंड हो जाएगा, राइट। एक तो वो प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम बाउंडेड ड्रग, राइट। दूसरा एक तो होगा फ्री ड्रग, ठीक है। सो जो कि प्लाज्मा प्रोटीन को बाउंड नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना जो मैंने यहाँ पर लिख रखी है, देखिए। एक बार समझ लो आपने कौन सा था ड्रग ले लिया, कौन सा ड्रग लिया, फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल लिया, राइट। सो पैरासीटामोल अगर आप ले लेते हो 500 mg का, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, आई एम नॉट गोइंग बीइंग, मैं फैक्ट्स नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ एक एक एग्जांपल बता रहा हूँ। 500 में से सपोज करो कि 400 mg ऑफ ड्रग, दिस इज इन mg, 400 mg ऑफ ड्रग इज अनबाउंड, मीन्स व्हाट, फ्री, राइट। और 100 mg ड्रग ये बाउंड हो गया प्रोटीन से, प्लाज्मा प्रोटीन से, ओके। इसका मतलब थेरापेटिक इफेक्ट लाने के लिए कौन सा ड्रग अवेलेबल है? सिर्फ 400 mg ऑफ पैरासीटामोल जो अनबाउंडेड है वही अवेलेबल है, ठीक है। सो इतना समझ में आया। सो थेरापेटिक इफेक्ट किससे होगा? सिर्फ और सिर्फ फ्री ड्रग से, ओके गाइज, सिर्फ और सिर्फ फ्री ड्रग से, राइट। सो देन आगे बढ़ते हैं। आगे जाने के बाद अपने को पता चलता है कि जो ड्रग है उसका एक तो वो जाएगा टिश्यू स्टोरेज, उसका कुछ अमाउंट होगा वो टिश्यू स्टोरेज में काम आएगा, कुछ अमाउंट, जो कुछ अमाउंट है वो जाएगा साइट ऑफ एक्शन में जहाँ पर उसकी ज़रूरत है। लाइक पेन है तो लोकल पेन है, समझो नी जॉइंट पेन है तो नी जॉइंट के यहाँ पर जाएगा। सो दिस इज़ द साइट ऑफ एक्शन, या फिर जो रिसेप्टर्स है वहाँ वो रिसेप्टर्स के पास जाएगा, ओके गाइज। देन उस सब के बाद उसका मेटाबॉलिज्म भी होगा। मेटाबॉलिज्म होगा तो मेटाबॉलिज्म होने के बाद उसके मेटाबोलाइट्स भी बनेंगे। मेटाबॉलिज्म हुआ, ड्रग मेटाबॉलिजेशन हुआ, वो कौन करेगा मेटाबॉलिज्म? लीवर करेगा, लंग करेगा और ब्लड करेगा, राइट। सो दीज थ्री थिंग्स, लीवर, लंग एंड ब्लड, सो दीज थ्री थिंग्स डू मेटाबॉलिज्म, ओके, मेन मेन थिंग। उसके बाद मेटाबोलाइट्स बनेंगे, मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो एक्सक्रीट हो जाएंगे, किससे? यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होंगे, बाइल के थ्रू एक्सक्रीट होंगे, फीसेस के थ्रू एक्सक्रीट होंगे और स्वेट और सलाइवा के थ्रू एक्सक्रीट होंगे, राइट। उसके बाद ड्रग का फिर जो एक्सक्रीशन है वो भी होगा, एलिमिनेशन होना ज़रूरी है, जो ड्रग बॉडी में लिया है उसका एलिमिनेशन होना भी ज़रूरी है। सो एलिमिनेशन कैसे होगा? रीनल, किडनी के थ्रू, यूरिन के मार्फत, उसके बाद बिलेरी ट्रैक से, बिलेरी, उसके बाद एक्सहेलेशन से, हम जो एक्सहेल करते हैं ना उससे, राइट। सो दिस इज हाउ फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ द ड्रग इज गोइंग टू बी हैपन, राइट। अब इसके ये सब चीज़ों के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमको पढ़नी होती है वो होती है परमिएशन। हमने डिफ्यूजन के बारे में कल पढ़ लिया। डिफ्यूजन इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ परमिएशन, ओके गाइज। सो ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सो परमिएशन होता क्या है? सो उसके पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिला देता हूँ जो मैंने यहाँ पर लिख रखी है, वो आपको रट्टा होनी चाहिए, वो आप सिर्फ फैक्ट के तरह आप याद कर लेना, राइट। फिलहाल उसका सारा क्यों, कैसे, क्या, सारे वाई नॉट एक्सेट्रा वो सब मैं आपको बता दूंगा आगे चल के। लेकिन अब फिलहाल ये याद रखना, एब्जॉर्प्शन जिस ड्रग का होता है, द ड्रग का कौन सा फॉर्म होता है जिसका एब्जॉर्प्शन होता है। एक तो वो ड्रग अनआयनाइज होना चाहिए, दूसरा वो ड्रग लिपिड सोल्यूबल होना चाहिए, ओके। ओनली लिपिड सोल्यूबल एंड ओनली अनआयनाइज्ड ड्रग गेट एब्जॉर्ब, ओनली लिपिड सोल्यूबल एंड ओनली अनआयनाइज्ड ड्रग गेट एब्जॉर्ब, ओके। मेक दिस इज अ रूल, ओके। देन कौन से फिर एब्जॉर्ब नहीं होंगे?
लिपिड के अगेंस्ट कौन सा होगा अपना वाटर सोल्यूबल ड्रग, अनआयनाइज सो आयनाइज, सो आयनाइज एंड वाटर सोल्यूबल ड्रग गेट बेटर एक्सक्रीटेड, एलिमिनेटेड. ओके, सो एक्सक्रीशन सबसे अच्छा किसका होता है, इसका होता है. ओके, सो दीज वाटर सोल्यूबल एंड आयनाइज ड्रग डू नॉट गेट एब्जॉर्ब, डू नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन. ओके, याद रखना. आगे चलते हैं. आई एम telling you about absorption, I'm telling you about crossing the membrane. Okay guys, I'm not telling you about the filter. Make sure ionize and non ionize both can get filter. यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तुमको तुम्हारे लिए, आगे भी मैंने बताया है लेकिन मैं यहीं बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए. फिल्ट्रेशन अगर आप देखोगे, सो फिल्ट्रेशन में आयनाइज and non-ionize both get filters. ओके, सो यहाँ पर कंफ्यूजन मत करना. आगे चलते हैं. ओके गाइस, इतना तो समझ में आ गया आप सबको. आगे चलते हैं परमिएशन. राइट, सो मैंने आपको बताया था अभी परमिएशन के बारे में. सो परमिएशन ये ऐसी चीज़ है, मीन्स इस ये ड्रग के बारे में बताता है. सो ड्रग, it is the quality of a drug which gives the it is the quality of drug which gives the drug ability to move throughout the body. So पूरे बॉडी में मूव करने के लिए उसको परमिएशन की ज़रूरत पड़ती है. परमिएशन दो तरह के, परमिएशन दो चीज़ों से होती है. एक तो होगा डिफ्यूजन से, दूसरा होगा पेनिट्रेशन से. मीन्स टू डिफ्यूज थ्रू आउट और पेनिट्रेट समथिंग. ओके, उसके बाद ही ये पूरा बॉडी में होगा. राइट, दिस इज कॉल्ड परमिएशन. परमिएशन समझ गया आपको. परमिएशन क्या है, एक सिंपल लैंग्वेज में अगर बताया जाऊँ, वे लेमैन लैंग्वेज में, अगर एक चीज़ है जो एक पर्दा, मीन्स एक पर्दा को पार करके दूसरे जगह, जैसे पानी है, पानी अगर हम कपड़े में लेंगे, कपड़े से वो पानी उस बाजू जाएगा. सो दैट उसको बोलते हैं दैट पानी ने परमिएट किया वो लेयर को, कपड़े के लेयर को. ओके, ये सिंपल है. सो अब उसके अंदर मैकेनिज्म क्या, डिफ्यूजन था, पेनिट्रेशन था, वो डिफरेंट है. ओके गाइज, बस परमिएट ये किया. सो परमिएट दो तरीके से होगा, एक डिफ्यूजन से होगा, एक पेनिट्रेशन से होगा. ओके, अब ये तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है. राइट, तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है. एक सोल्यूबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है. सेकेंड, ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करेगा. थर्ड, इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया एंड वैस्कुलेचर. ओके, ये सबसे पहले एक सोल्यूबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करेगा, थर्ड इट डिपेंड्स ऑन दी सरफेस एरिया एंड वैस्कुलेचर. अब एक एक करके बताते हैं. राइट, सोल्यूबिलिटी. सोल्यूबिलिटी कौन सी सोल्यूबिलिटी होनी चाहिए उसकी, वाटर सोल्यूबिलिटी होनी चाहिए? नहीं, इसमें लिपिड सोल्यूबल कंपाउंड ही होना चाहिए. ओके, सो परमिएशन के लिए लिपिड सोल्यूबिलिटी मैटर करेगी. ओके गाइस, सेकेंड क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इसके अंदर जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उतना ज़्यादा परमिएशन होगा. हायर द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, हायर इज द परमिएशन. ओके, अब ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनाने में कौन हेल्प करता है? ओनली टू थिंग्स. एक फ्री ड्रग, दूसरा लिपिड सोल्यूबल और अनआयनाइज्ड ड्रग. Forget about lipid soluble. Just remember this unionized drug. Okay, so unionized compound or free drug can only contribute to the concentration gradient. अब कौन नहीं करेगा?
कौन नहीं करेगा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में? ऑफ कोर्स बाउंडेड ड्रग, बाउंडेड ड्रग जो प्लाज्मा प्रोटीन को बाउंड है। दूसरा आयनाइज ड्रग, सो दिस विल नॉट कंट्रीब्यूट टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अंडरस्टूड? इतना समझ में आया? अब आगे चलते हैं वैस्कुलेचर और ओके सरफेस एरिया और वैस्कुलेचर। अब इसको ये इस तरीके से समझिए, एक तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा उतना उसका परमिएशन ज़्यादा, राइट? ठीक है, सरफेस एरिया और वैस्कुलेचर। अब जितना सरफेस एरिया ज़्यादा उतना परमिएशन ज़्यादा। अब इसके एग्जाम्पल के थ्रू बदल, एग्जाम्पल में समझ लो स्टमक है और दूसरा है इंटेस्टाइन। किसका सरफेस एरिया ज़्यादा है? सरफेस एरिया किसका ज़्यादा होगा? इंटेस्टाइन तो बहुत लंबा होता है, उसके अंदर ऐसे 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 विलाय ये भी हो गया। सो सरफेस एरिया इज मोर इन इंटेस्टाइन। सो इंटेस्टाइन में परमिएशन ज़्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से ज़्यादा होगा। किसमें एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा? इंटेस्टाइन में। दूसरी चीज़ वैस्कुलेचर, जितना ज़्यादा ब्लड सप्लाई, वैस्कुलेचर म्हणजे ब्लड वेसल्स, सो जितने ज़्यादा ब्लड वेसल्स होंगे उतने ज़्यादा वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा ना, ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होगा। सो ऑफ कोर्स दिस इंटेस्टाइन इज मोर हाईली वैस्कुलराइज। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, इंट्रामस्कुलर इज मोर देन सबक्यूटेनस। सो इंट्रामस्कुलर अगर इंजेक्शन दोगे, पता है ना 90 डिग्री का एंगल बनाना होता है, हाँ, तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दोगे तो मसल में दोगे। सो मसल इज हाईली सप्लाइड, हाईली वैस्कुलराइज, राइट? सबक्यूटेनस देंगे मतलब ये एपिडर्मिस, ये डर्मिस, और इसके नीचे सबक्यूटेनस। सो यहाँ पर लेस वैस्कुलरेचर होता है। इसलिए सबक्यूट इंजेक्शन हम तब देते हैं जब हमको स्लो एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत होती है। स्लो एब्जॉर्प्शन इज नीडेड, व्हेन स्लो एब्जॉर्प्शन इज नीडेड वी चूज subcute, when fast absorption is needed we choose IM, right? Understood? या और inhalation, understood? I hope you all have got। अगर फिर भी नहीं समझ रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपको हेल्प करने के लिए ट्राई करूँगा, या फिर आप बार बार देख लेना गाइज, आपको पता चल जाएगा कि क्या कौन कहाँ, रिपीट देख लेना। इसमें यही चीज़ सबसे अच्छी है कि हम रुका के सोच सकते हैं और रिपीट सुन भी सकते हैं, राइट? अब मैं आपको ये बताता हूँ, अब आया हमारा सबसे मेन टॉपिक आयनाइजेशन, जो कि हमको बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करना है, राइट? सो आयनाइजेशन, व्हाट इज़ आयनाइजेशन? सबसे पहले तो हम इंटरनेट के ऊपर जो उसकी डेफिनेशन दी है वो पढ़ लेते हैं, राइट? सो उससे अपने को आपको जो भी वो थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में हम जाते हैं बुक के पास। This is what written on the internet, okay, you can see this Google, okay. So what is ionization of drug, right? So ionization or a charged drug are not absorbed as efficiently as an unionized drug are। क्या होता है आयनाइज्ड ड्रग? आयोनाइज जो ड्रग है या फिर चार्ज ड्रग है, उनको क्या बोला है? वो नॉट गेट एफिशिएंटली एब्जॉर्ब, एब्जॉर्प्शन बहुत कम है इसका, वेरी वेरी लेस और नॉट, ओके, कंपेयर टू अनआयनाइज्ड ड्रग। अनआयनाइज्ड ड्रग
okay, means no charge. Okay, so practically speaking this means that if taken orally, अगर हम कुछ ड्रग ओरली लेते हैं, सो ड्रग इज वीक एसिड, अगर वो वीक एसिड है, अगर वो वीक एसिड है, एग्जाम्पल एस्प्रिन ले लो, ठीक है, सो वीक एसिड है, सो इट विल बी एब्जॉर्ब प्राइमरली इन एसिडिक एनवायरमेंट। सो इसको, ये स्टमक है समझ लो, स्टमक के अंदर पीएच कितना होता है गाइस, 1 से 2, राइट, सो दैट मीन्स मीडियम इज व्हाट, एसिडिक। सो तुमने वीक एसिड डाल दिया इसमें, सो वीक एसिड ना, सो इट गेट एब्जॉर्ब हियर, राइट, व्हाई, like unionization like medium means what, अगर like substance like medium में गया तो उसका अनआयनाइजेशन होता है, राइट। सो अभी वीक एसिड है, तो वीक एसिड एसिडिक एसिड एसिडिक मीडियम में जाएगा, सो उसका अनआयनाइजेशन होगा ना, नॉन आयनाइजेशन होगा। और हमको पता है कि नॉन आयनाइज्ड ड्रग्स आर द ओनली ड्रग विच गेट एब्सॉर्ब। अंडरस्टूड, मैंने आपको रटने बोला था वो वर्ड, सेम थिंग। तो यहाँ पर एसिडिक बना, वेयर एज द ड्रग दैट इज वीक बेस, ड्रग्स दैट इज वीक बेस विल बी एब्सॉर्ब इन अल्कलाइन एनवायरमेंट। अब हम समझो एक एट्रोपिन नाम का ड्रग है, एट्रोपिन इज व्हाट, बेसिक, इट इज बेस, ओके। सो बेस को पहले ओरली लिया, समझो एट्रोपिन वैसे ओरली आता नहीं है, लेकिन ये कहाँ होगा, ये जाएगा इंटेस्टाइन में, सो इंटेस्टाइन में जाके ये एब्सॉर्ब होगा। एट्रोपिन के डेरिवेटिव ले लो, राइट, ये जाएगा इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में जाके होगा, बिकॉज इंटेस्टाइन में पीएच कितना होता है, मोर देन एसिडिक, सो अल्कलाइन पीएच होता है कंपेयर टू स्टमक, ओके। So it will go into the small intestine and get absorbed there. क्यों, because हमने देखा है कि like unionization like medium, like will get unionized in like medium। अगर ये बेस है तो ये बेस ही रहेगा बेस में जाने के बाद, अगर ये बेस एसिड में जाता है सो ये आयनाइज हो जाएगा। अंडरस्टूड, डोंट वरी, नहीं समझ रहा है, इसके आगे भी सेम एक्सप्लेनेशन मैंने अभी और 2-3 बार दूंगा तुमको, राइट, सो डोंट वरी। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। मिटा दूँ मैं ये, ओके लेट इट बी, रखते हैं फिर बाद में डिलीट करते हैं, ठीक है। अब ठीक है गाइज, आपको एक, अरे okay guys, so now we'll see what is there in ionization, okay। so एक याद रखना, ये है pKa। what is pKa? pKa is the dissociation constant of इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड एंड वीक बेस, ओके, उसका डिसोसिएट मीन्स कितना डिसोसिएशन होगा। अगर हमने एक इलेक्ट्रोलाइट वीक एसिड या वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो हमने वाटर में या किसी सॉल्यूशन में डाल दिया, फिर उसका डिसोसिएट होगा, दैट विल गेट डिसोसिएट, दैट सॉल्ट विल गेट डिसोसिएट, राइट। सो सम विल गेट सॉलिड, सम विल गेट बेस एंड सम विल गेट एसिड, वीक एसिड वीक। सो कितना होता है, 50% जब होगा, 50% आयनाइज और 50% नॉन आयनाइज, दैट इज़ द पीके वैल्यू। जो पीके वैल्यू होती है वो डिनोट करेगी कि एट दिस पीक, दैट पीके वैल्यू यू आर
drug is 50% ionized form and 50% non-ionized form. So understood? So ionization is depend on pKa or pH of the environment. Okay, so ionization is depend on two things. Okay, ये भी हम आगे जाके देखते हैं, right? Okay, weak acid or weak base is ionized or non-ionized, can be ionized or can be non-ionized. ओके, कभी भी वीक एसिड और वीक बेस या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स ये आयनाइज और नॉन आयनाइज बोथ फॉर्म में रहते हैं एट इक्विलिब्रियम. ओके, ये समझ में आ गया लाइन? ये सब याद रखना, ये सब होता है हमारे बॉडी में, इसलिए बता रहा हूँ. ठीक है. दूसरा चीज़ 50% आयनाइज और 50% नॉन आयनाइज वाली चीज़. ये 50% आयनाइज है जो कि वाटर सोल्यूबल होगा. ऑफकोर्स आयनाइज है ना, जिसके ऊपर चार्ज है. ओके, सो वो वाटर सोल्यूबल होगा. जिसके ऊपर चार्ज नहीं है, नॉन आयनाइज है, तो वो क्या होगा? लिपिड सोल्यूबल, जो मैंने ऊपर तुमको रटवा दिया था, लिपिड सोल्यूबल. यहाँ तक को किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए, राइट? अब ये वाटर सोल्यूबल है, इसका मतलब ये एक्सक्रीशन इसका ज़्यादा होगा. ये भी मैंने ऊपर बता दिया, एलिमिनेशन ज़्यादा होगा, एक्सक्रीशन ज़्यादा होगा. क्यों? क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है. सो किडनी से क्या जाएगा? वाटर ही जाता है ना, ज़्यादा. सो इट विल गेट वेरी वेल एक्सक्रीटेड थ्रू किडनी बिकॉज इट इज़ water soluble. Okay guys, then as it is charged particle or as it is charged form of drug, so ये इसका एक लिमिटेशन क्या आ जाएगा? it cannot pass through the biomembrane, it cannot cross the biomembrane. okay, it cannot cross the biomembrane, इसका मतलब इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा. दूसरा चीज़, लिपिड सोल्यूबल है, अनचार्ज है, चार्ज नहीं है इसके ऊपर. दूसरी चीज़, ये नॉन आयनाइज है. सो हमने ऊपर देखा था कि कैन क्रॉस अ बायोमेम्ब्रेन. बायोमेम्ब्रेन क्या होता है वो मैंने तुमको बता दिया है. लिपिड बायलेयर, राइट? फॉस्फोलिपिड बायलेयर, उसके बाद उसके अंदर प्रोटीन्स भी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी होता है एडेड, पेरिफेरल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, एवरीथिंग वी हैव एक्सप्लेन इन डिटेल इन लास्ट लेक्चर. ओके गाइस, नाउ गोइंग फर्दर, आगे चलते हैं. ठीक है, अगर किसी को कुछ डाउट है तो यहाँ पर रुका दो, फिर से एक बार वीडियो देख लेना यहाँ से, फिर बाद में हम आगे जाएंगे, राइट? तो मैं अभी आगे चलता हूँ. अब थोड़ा सा इक्वेशन के ऊपर आना है हमको, राइट? आई थिंक इक्वेशंस आपको आते होंगे, बट थोड़ा सा ये कंफ्यूजन भी करता है कभी कभी, राइट? सो इक्वेशंस मैं बताता हूँ. एक तो है वीक एसिड और वीक बेस. ये हेसल, ठीक है. वीक एसिड के लिए क्या होगा? एक ये वीक एसिड है. वीक एसिड में कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, कौन सा ग्रुप लगा होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. सो दिस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, विच ग्रुप? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. सो इससे हमको पता चलता है वीक एसिड है. अब इसके ऊपर कुछ चार्ज है क्या? नहीं, बिकॉज दिस इज द सॉल्ट. ओके, सो ये डिसोसिएट होगा. ठीक है, ये डिसोसिएट होगा दो चीज़ों में, एक एसिड में दूसरा बेस में. एक एसिड में और दूसरा बेस में. अब ये जो बनेगा, ये एसिड कौन सा होगा? वीक एसिड और वीक बेस, राइट? सो दिस इज बेस. सो ये जो है, ये साइड जो है, ये जो चार्ज है, राइट? दिस इज चार्ज, दिस इज चार्ज. सो अब हमने देखा था, इसका मतलब चार्ज है, मतलब क्या है? ये आयनाइज है, राइट? यहाँ पर चार्ज नहीं है, राइट? सो दैट मीन्स दिस इज नॉन आयनाइज. अब मैंने तुमको क्या बताया था कि नॉन आयनाइज जो होते हैं वो बेटर उसका एब्जॉर्प्शन होता है और जो बायोमेम्ब्रेन ये क्रॉस करेगा, राइट? ये बताया था. एग्जाम्पल ले लो एस्प्रिन का. अब ये एस्प्रिन, जब ये एक वीक एसिड है, राइट? वीक एसिड जब ये जाएगा एसिडिक मीडियम में, स्टमक में, सो इट विल गेट बेटर एब्जॉर्ब, इट विल क्रॉस द म्यूकोजल मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक, राइट? सो ये बिकॉज ये नॉन आयनाइज रहेगा इस समय. एसिड गोज इन एसिडिक मीडियम, इट इज नॉन आयनाइज. ओके, अंडरस्टूड? इसका मैं एक फॉर्मूला बना के थोड़ी देर में दूंगा तुमको, लेकिन अब इतना याद रखना, एसिड इन एसिडिक मीडियम नॉन आयनाइज, सेम मीन सेम मीडियम, बेस इन बेस मीडियम
नॉन आयनाइजेशन। ओके, ये याद रखना। सो एसिड इन एसिड मीडियम, सो स्टमक में गया, सो ये इसका अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अगर ये वीक एसिड ये आगे चल के समझ लो इंटेस्टाइन में गया, ये इंटेस्टाइन में वैसे तो नहीं जाएगा, लेकिन गया जो थोड़ा बचा होगा उग जाएगा, तो उसका डिसोसिएशन होगा। सो वहाँ डिसोसिएशन होगा, उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। सो दिस चार्ज इट विल गेट आयनाइज, इट विल गेट आयनाइज, इट विल गेट डिसोसिएट। सो इसका क्या होगा, बेटर एक्सक्रीशन होगा। सो अगर यहाँ से मैं तुमको एक क्लिनिकल एक केस देता हूँ, ठीक है, एक याद रखो। अगर कोई बंदा तुम्हारे पास आता है या फिर कोई पेशेंट आता है तुम्हारे पास कि बोलता है उसने एस्पिरिन की बहुत सारी गोलियां खा ली है, बहुत सारी गोलियां खाई है, ठीक है, बहुत सारी, मतलब जो उसको हार्म कर सकती है, ऐसी 10 12 15 20 गोलियां खा ली है। सो इट इज़ ऑफकोर्स बहुत डेंजर है। एस्पिरिन पता है ना तुमको, एंटी एंटी प्लेटलेट है, ठीक है। सो ये उसका ओवरडोज तुम कैसे निकालोगे? ऑफ कोर्स तुम स्टमक में अगर देखोगे तो एसिडिक मीडियम, सो इट विल गेट बेटर गुड एब्जॉर्ब। सो आपको तुम उसको कंटिन्यूली निकालना है बॉडी से बाहर। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बॉडी का एनवायरनमेंट या फिर यूरिन का एनवायरनमेंट आपको बेसिक बनाना पड़ेगा। एसिड प्लस बेसिक एनवायरनमेंट will ionize the drug. Once you ionize that aspirin like this, once you ionize, then it will get better excreted. That means it will get better cleared. Understood? So ये होगी तुम्हारी एक ट्रीटमेंट, राइट। सो अब तुमको आयनाइज करने के लिए, यूरिन को आयनाइज करने के लिए क्या चाहिए, मीन्स उसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ये सारी चीज़ मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अब बस इतना याद रखने ना कि एस्प्रिन है, उसका ओवरडोज हो गया, ओवरडोज हो गया तो एसिड है। सो एसिड को अगर बाहर निकालना है तो तुमको उसके अंदर बेसिक एनवायरनमेंट ज़्यादा बनाना पड़ेगा। बेसिक एनवायरनमेंट ज़्यादा हो गया तो एसिड और बेस दोनों मिला के एनवायरनमेंट में जाएगा, तो उसका आयनाइजेशन होगा। वंस इट गेट आयनाइज, सो इट विल गेट बेटर क्लियर्ड और बेटर एलिमिनेटेड और बेटर एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। ओके, दूसरा आगे चलते, दिस इज वीक बेस। ये वीक बेस का इक्वेशन है। ओके, इन वीक बेस, इन वीक बेस दिस इज अमाइन ग्रुप, अमीन ग्रुप और अमाइन ग्रुप, बट दिस इज अमाइन ग्रुप विथ चार्ज। ओके, this is also amine group, but this is without charge, no charge is there. Okay guys, so here on left side you see a charge, so this will get, this is the ionized form of drug, so this will get better cleared. Understood? This is unionized form, right? So this can cross the membrane very well. Which membrane? Biomembrane, of course. This is amine group without charge, this is amine group with charge. Okay, understood? This is equation for the base, weak base. This is equation for the weak base, and उसके पहले वाला इक्वेशन जो था, दिस इज दैट वाज इक्वेशन फॉर द वीक एसिड। ओके, अब इसके अंदर एग्जांपल क्या है, मॉर्फिन है, लिडोकेन है, एम्फिटामाइंस है ना, जो भी सारे नींद आती है वो दवाइयाँ, ये सारी, या फिर एनास्थेटिक्स जो है वो सारी दवाइयाँ वीक बेस होती है, ये याद रख लेना, ठीक है। अब आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि कौन कौन से ड्रग्स, ठीक है, कौन कौन से ड्रग्स वीक एसिड है, कौन कौन से ड्रग वीक बेस है, इसकी एक लिस्ट बनाओ और मुझे कमेंट में बता दो। आई थिंक मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ तो आप इतना तो कर सकते हो, राइट। ये मुझे चीज़ कमेंट में बता दो, सो दैट हमको आपको एक आइडिया आ जाएगा कि इसका एब्जॉर्प्शन, अगर वो टैबलेट ओरल फॉर्म है तो उसका स्टमक में एब्जॉर्प्शन हो गया या इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगा, ये सारी चीज़ पता चल जाएगी। अगर वो दूसरा, अगर आईएम या आईवी के थ्रू जा रहा है तो वो किस तरीके से होगा उसका, एवरीथिंग वी यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बाय दिस। ओके, राइट। सो नाउ अब हम चलते हैं एक ग्राफ की तरफ, राइट। सो पहले एक याद रखना, एक वो ग्राफ में वही मैं एक्सप्लेन करूँगा। सी, दिस इज़ योर फॉर्मूला, दिस इज़ योर, यू हैव टू रट दिस, एक याद कर लो इसको, जस्ट बाय हार्ट दिस वर्ड। मैंने बनाया नहीं है, ये मैंने इंटरनेट से उठाया है, राइट। सो लाइक इज अनआयनाइज्ड इन लाइक, like is unionized in like, again
again like is unionized in like. Again like is unionized in like means what? If it is acid, if it is weak acid, it goes in the environment of weak acid, it goes in the environment of acid, then it will get unionized. So it is unionized form. If it is weak base, it goes into the weak, sorry, it goes into the basic medium, then it will get unionized. Unionized means you know without charge. Okay guys, without charge. अब ये हो गया. अब इसके अपोजिट लिखना. अगर ये लाइक और अनलाइक में गया, एसिड गेट्स इनटू द बेसिक मीडियम, देन इट विल नॉट अनआयनाइज, इट ये अन निकल जाएगा और इट विल गेट आयनाइज. अंडरस्टूड. सो ये एक फॉर्मूला है, ये फिक्स कर देना तुम्हारे माइंड में, एकदम फिक्स कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है राइट. ये जब भी तुम ड्रग देखोगे तो पहले तुमको ये सब याद रहे, ये उसके बारे में ये पता रहना चाहिए कि ये क्या है भाई. एसिड है, मीडियम है, कौन एसिड है, बेस है, वीक एसिड है, वीक बेस है, क्या है. सो या वीक एसिड इन एसिडिक मीडियम अनआयनाइज, वीक बेस इन बेसिक मीडियम अनआयनाइज. आई थिंक आपको ये समझ रहा है अभी राइट. अब हम चलते हैं इस ग्राफ की तरफ राइट. सी मैंने यहाँ पर एक पीएच लिख के रखा है, कुछ इम्पोर्टेंट अपने बॉडी का. pH ऑफ स्टमक इज 1 to 2, pH ऑफ स्टमक इज 1 to 2, pH ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज 6, pH ऑफ ब्लड इज 7.4, pH ऑफ यूरिन इज 5 to 8. ओके ये आपको बेसिक याद रहना चाहिए. ओके सेल का pH कितना है? 7. इंट्रासेलुलर बोल रहा हूँ. ओके आगे चलते हैं. सो नाउ थोड़ा पानी पी लेता हूँ. ओके सो इसके अंदर अब देखोगे, सो यहाँ पर मैंने एक ग्राफ बनाया. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. ओके सो एक्स एक्सिस के ऊपर हमको एसिडिक मीडियम पीएच स्केल दिख रही है राइट. ये पता है ना 7 तक होती है, 14 तक होगा राइट. सो पीएच स्केल दिख रही है और दूसरा वाई एक्सिस पे हमने आयनाइजेशन का बताया राइट. अभी इसके अंदर इसको 4 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया है, वो मैं आपको अलग अलग तरीके से. हमको वीक एसिड अगर देखना है तो वीक एसिड में क्या होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है राइट. दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज ऑन विच साइड? सी दिस इज 0. ओके दिस इज 0 मीन्स एट दिस लेवल pH इज इक्वल टू pKa, pH इज इक्वल टू pKa. अब मैंने आपको pH और इसका इक्वेशन का ये नहीं बताया ना, एक सेकेंड. pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉगरिथम ऑफ आयनाइज और अनआयनाइज फॉर्म जो होता है उसका, और बी लाइक दिस राइट. मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है वो दिखा देता हूँ तुमको अब बीच, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे. इतना भाई this equation is there. Right, A minus Henderson-Hasselbalch equation. See, this is Henderson-Hasselbalch equation. बता देता हूँ मैं आपको इसी समय. Henderson-Hasselbalch equation, right? ये वीक एसिड और वीक बेस के लिए जो इक्वेशन है वो बता रहा हूँ. सो दिस इज इक्वेशन फॉर द वीक एसिड. pH is equal to pKa. pKa is what? Dissociation constant, negative logarithm of weak acid divided by ionized form of acid और unionized form of weak acid. ओके गाइज. सो इसका इक्वेशन ये है वीक एसिड के लिए इक्वेशन. pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉगरिथम ऑफ अनआयनाइज फॉर्म ऑफ वीक एसिड एंड आयनाइज फॉर्म ऑफ वीक बेस. ओके ये है वीक बेस के लिए. ये याद रखना, बेस के अंदर बेस में चार्ज रहेगा. अंडरस्टूड. बेस इज बेस में चार्ज. बेस मतलब क्या? नीचे होता है राइट. हमारा एसिड बेस का वो बेस नहीं बोल रहा हूँ. जो एक घर है, एक घर जो एक बॉटल है, बॉटल के
नीचे वाला हिस्सा, राइट, बॉटम, बॉटम इज व्हाट, बेस। सो एक याद रखना, इससे कैसे याद रखोगे, कौन सा चार्ज, ये फॉर्मूला कैसे याद रखोगे, बेस वाले इसमें चार्ज, बेस में, वीक बेस के अंदर बेस में चार्ज है, सो बेस में चार्ज है। सो इसका मतलब अनआयनाइज फॉर्म इज व्हाट, इन द बेस, here in the denominator, numerator, right? Okay guys, understood? That is when so this pKa क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है, pKa is what, डिसोसिएशन कांस्टेंट। उस समय क्या होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट के यहाँ पर जो ड्रग है वो 50% आयनाइज होता है और 50% नॉन आयनाइज होता है। इसका मतलब जब pH इज इक्वल टू pKa, इसका मतलब इसका वैल्यू अगर एक है, समझ लो इसके वैल्यू, ये दोनों अगर इक्वल है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक, log 1 इज व्हाट, log 1 इज 0। सो पी एच इज इक्वल टू पी के, अगर पी एच और पी के इक्वल हो गया, सो दैट टाइम योर ड्रग इज 50% आयनाइज एंड योर ड्रग इज 50% नॉन आयनाइज स्टेट। ओके, ये समझ में आया। अब हम जाते हैं अपने ग्राफ की तरफ। ग्राफ, वेयर इज आवर ग्राफ, ओके, ग्राफ की तरफ। सो यहाँ पर आयनाइजेशन बढ़ रहा है, यहाँ पर रीनल क्लियरेंस, सी दिस इज रीनल क्लियरेंस, ओके। अब ये हमने एसिड है, वीक एसिड है, वीक एसिड हमने कौन से मीडियम में रखा है, एसिड मीडियम में रखा है, सी ऑन लेफ्ट साइड ऑफ दिस जीरो, और दिस इज पी के इज इक्वल टू पी के इज इक्वल टू पी एच, राइट, दिस ईयर। सो लेफ्ट साइड में रखा है, सो लेफ्ट साइड मीन्स एसिडिक मीडियम में रखा है। जैसे वो एसिडिक मीडियम में रहता है, सो वो कौन से लेवल पे है, मीन्स व्हाट, दिस इज आयनाइज और नॉन आयनाइज, दिस इज नॉन आयनाइज स्टेट, राइट, दिस इज नॉन आयनाइज। सो इस बाजू में, राइट, जैसे जैसे ये क्रॉस करेगा, इसका मतलब ये क्या होगा, दिस विल गेट बेटर एब्जॉर्ब, राइट, दिस विल गेट बेटर एब्जॉर्ब, exactly, this will get better absorbed. Then once it goes to the weak basic side, it goes to the basic side, once it goes, see जैसे जैसे वो इस बाजू आएगा वैसे वो बेसिक साइड में जा रहा है, राइट। सो एक बेसिक साइड में वो जैसे ही जाएगा, सो ये पार्ट में, राइट, ये पार्ट में ये क्या होगा, वीक एसिड जो होगा, ये वीक एसिड, सॉरी ये ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर मैंने, हाँ, ये क्या है, वीक एसिड। सो वीक एसिड इन बेसिक मीडियम, सो दिस इज बेसिक मीडियम, ऑन राइट साइड, जीरो के राइट साइड में बेसिक मीडियम है, जीरो के लेफ्ट साइड में एसिडिक मीडियम है। सो बेसिक मीडियम में अगर वीक एसिड आया तो वो आयनाइज हो जाएगा, राइट। वंस वो आयनाइज हुआ मतलब क्या हुआ, ये बेटर क्लियर होगा, बेटर क्लियर मीन्स रीनल के थ्रू, राइट, किडनी के थ्रू, या फिर एलिमिनेट होगा, बेटर एलिमिनेटेड, ओके। अब देखो ये बेस का, देखो बेस के अंदर देखो बेस अगर बेसिक मीडियम में है, बेस ये बेसिक मीडियम है और ये वीक बेस है अमाइन विदाउट चार्ज। सो ये क्या होगा, विदाउट चार्ज मतलब नॉन आयनाइज होगा, इसका मतलब ये क्या होगा, बेटर एब्जॉर्ब होगा, दिस कंडीशन, ये पार्ट में वो बेटर एब्जॉर्ब होगा। जैसे वो लेफ्ट साइड में आएगा, जीरो के लेफ्ट साइड में आएगा मतलब एसिडिक मीडियम में आएगा, वैसे उसके वो आयनाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इट विल गेट आयनाइज, राइट, इट विल गेट आयनाइज। सो वंस वो आयनाइज हो गया, आयनाइज हो गया तो वो क्या होगा, रीनल क्लियरेंस। सो जैसे ये नीचे आते हैं, सो वो ये इनका रीनल क्लियरेंस बढ़ जाता है, राइट। So this get renal clearance, okay, understood, okay guys, so now we'll go further। I hope आपको ये सब समझ गया होगा, राइट, अगर नहीं समझा होगा तो फिर से देख लेना, मुझे पता है समझ जाएगा। एक चीज़ बताऊँ क्या उसके अंदर, और एक, ओके, और एक चीज़ एस्पिरिन का आपको ये बताता हूँ, किधर गया, ये क्या है,
इसके अंदर बना। अब समझ लो आपका एसिड है, राइट, ये एसिड है। अब ये एसिड को बेसिक एनवायरनमेंट में डालोगे तो ये आयनाइज हो जाएगा। वंस ये आयनाइज हो गया तो ये बेटर क्लियर होगा, राइट, इतना याद हुआ। अब मैंने तुमको एक एस्प्रिन का एग्जांपल दिया था। ये एस्प्रिन को तुम कैसे भी करके ये एनवायरनमेंट को, ये एसिडिक मीडियम में है पहला, सो ये एनवायरनमेंट को तुम कुछ तो ऐड करो ऐसा जिससे ये बेसिक मीडियम बन जाएगा। सो ऐड समथिंग, ऐड समथिंग, सम मॉलिक्यूल, सो इट विल गेट कन्वर्ट इनटू द बेसिक एनवायरनमेंट। सो ये इसका मतलब क्या होगा, ये एसिड इट गोज इनटू द बेसिक, इट कम्स इनटू द बेसिक एनवायरनमेंट। ये बेसिक एनवायरनमेंट आया, इसका मतलब ये आयनाइज हो गया। आयनाइज हुआ मतलब ये क्या होगा, बेटर क्लियर हो जाएगा, निकल जाएगा बॉडी से बाहर। तो इसको अगर बॉडी से बाहर निकालना है तो इसको तुमको बेसिक एनवायरनमेंट में डालना होगा। वही मैंने समझाया तुमको ओवरडोज ऑफ एस्पिरिन के अंदर, राइट, यही मैंने तुमको समझाया। दूसरी चीज़ अमाइन के बारे में, राइट, सॉरी बेस के बारे में। हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी होती है। हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, इसका मतलब क्या होता है, बिकॉज लीवर के फेलियर के वजह से ये जो पेशेंट है वो एकदम ड्राउजी होता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, ये होते हैं हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में, राइट। हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में ऐसा हो गया। तो इसके अंदर क्या होता है, ब्लड में, बॉडी में अमोनिया लेवल बढ़ जाता है। व्हाट, अमोनिया लेवल गेट इंक्रीज, बॉडीज अमोनिया लेवल गेट इंक्रीज, okay guys, so once ammonia level get increase, so it will go into hepatic encephalopathy। अब इसको तुमको ट्रीट करना है। अब इसको ट्रीट कैसे करोगे, तुम उसको दोगे लैक्टुलोज। लैक्टुलोज से क्या होता है, ये ज़्यादा मोशन करता है, ठीक है, बट लैक्टुलोज जैसे तुम दोगे, सो दिस गट के बैक्टीरिया के अंदर वो जाएगा, गट के बैक्टीरिया इसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। दिस मीन्स इट इज एसिड। सो मीडियम कौन सा बनाया तुमने, एसिडिक मीडियम बन गया। सो दिस एसिडिक मीडियम एंड दिस अमोनिया इज अ वीक बेस, सो दिस इज बेस, सो बेस प्लस एसिड, सो उसको तुमने इस बेस को मीन्स अमोनिया को तुमने एसिडिक मीडियम में डाल दिया, तो ये कौन सा बन जाएगा, NH3 अमीन विथ चार्ज। इसका मतलब ये आयनाइज हो गया, राइट, ये क्या हो गया, आयनाइज हो गया, चार्ज आ गया। तब ये क्या होगा, ज़्यादा रिनल से, किडनी से हम निकाल पाएंगे, सो ये बॉडी से निकल जाएगा, सो ये यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। इसके लिए ये क्या होगा, ये इसका अमोनिया लेवल कम हो गया, अमोनिया लेवल बॉडी के कम हो गया, सो हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी से पेशेंट निकल जाएगा और वो पेशेंट कॉन्शियस हो जाएगा तुम्हारा, राइट, विद इन वन डे और 2 डे। अंडरस्टूड, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। दिस इज क्लिनिकल कंडीशन, ओके गाइस, ये सब मैंने तुमको क्लिनिकल कंडीशन के बारे में बताया। अब आगे चलते हैं, ये हो गया। अब कुछ फैक्ट्स है जो तुमको याद करने, वो मैं तुमको बता देता हूँ, उसके बाद अपना लेक्चर और हो जाएगा, राइट। सो सबसे पहले, मोस्ट ड्रग आर वीक एसिड और बेस, वीक एसिड और वीक बेस दैट आर प्रेजेंट इन सोल्यूशन एज बोथ आयनाइज और नॉन आयनाइज फॉर्म। आयनाइज और नॉन आयनाइज फॉर्म में वीक एसिड और वीक बेस प्रेजेंट रहते हैं। वीक एसिड वीक बेस जो भी हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स है वो आयनाइज और नॉन आयनाइज बॉडी के फॉर्म में हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं मोस्टली, ओके। दूसरा, हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन हमने देख लिया, ये केमिस्ट्री में भी पढ़ा है हमने, राइट, ये हमने पढ़ लिया, ये मैं अभी रिपीट नहीं करूँगा, राइट। आगे थर्ड, मोस्ट ड्रग या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ओके, वीक इलेक्ट्रोलाइट, देन आयनाइजेशन इज पीएच डिपेंडेंट। सो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसके जो आयनाइजेशन होता है वो कैसे होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड है, पीएच के ऊपर डिपेंड है ना, ऑफ कोर्स पीएच के ऊपर डिपेंड है। एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम हम देख रहे थे, सो वो मीडियम कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड है, आयनाइजेशन होगा या ना होगा, राइट। सेकेंड थिंग, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, सेकेंड थिंग इट डिपेंड्स ऑन दी डिसोसिएशन कांस्टेंट, पी के वैल्यू क्या है उसका, इसके ऊपर डिपेंड है। सो दो चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड है, ओके। लेकिन अगर तुम देखोगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट,
ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा पेन ले लेता हूँ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स गेट कंप्लीटली आयनाइज, 50% ऐसा नहीं, कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे, राइट। सो ओनली वीक एसिड गेट्स 50% आयनाइज, 50% आयनाइज, और 30% 60% ऐसा। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, एक रूल है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीटली गेट आयनाइज, राइट। सो वेदर इट इज एसिडिक मीडियम और वेदर इट इज अल्कलाइन, पीएच कौन सा भी हो, मीडियम कौन सा भी हो, एसिडिक हो अल्कलाइन हो, ये आयनाइज हो जाएगा, राइट। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पीएच, पीएच इंडिपेंडेंट। ये सारे एमसीक्यू आएंगे गाइज, ये सारे एमसीक्यूज आते हैं, ओके। चलो आगे। ओनली फ्री और अनबाउंड, ओनली फ्री और अनबाउंड गेट फिल्टर, ओनली फ्री ड्रग और अनबाउंड मीन्स व्हाट, जो प्लाज्मा प्रोटीन को बाउंड नहीं है, राइट, वही ड्रग फिल्टर होता है। फिल्ट्रेशन के बारे में बताया था, वही ड्रग फिल्टर होता है। दूसरा मैंने ये भी बताया था कि आयनाइज और अनआयनाइज बोथ, दोनों के दोनों ड्रग फिल्टर होते हैं। आयनाइज और अनआयनाइज दोनों के दोनों ड्रग फिल्टर होते हैं। सेकेंड, थर्ड पॉइंट, ओनली, ये तो मैंने तुमको बताया था, ये भी याद रखना, ओनली व्हाट, ओनली फ्री और अनबाउंड ड्रग, ओनली फ्री और अनबाउंड ड्रग गेट फिल्टर, आयनाइज और नॉन आयनाइज बोथ ड्रग गेट फिल्टर, ठीक है, आयनाइज के बारे में। दूसरा, ओनली नॉन आयनाइज फॉर्म, ओनली नॉन आयनाइज, आयनाइज नॉन आयनाइज फॉर्म्स अंडरगो एक्टिव सिक्रीशन एंड एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, एक्टिव और पैसिव रीएब्जॉर्प्शन। ओनली व्हाट, ओनली नॉन आयनाइज्ड ड्रग, ओनली नॉन आयनाइज्ड ड्रग गेट एक्टिव सिक्रीटेड और एक्टिव सिक्रीशन और एक्टिव और पैसिव रीअब्जॉर्प्शन, ओके। इसके लिए मैं एक डायग्राम बनाया है, वो मैं तुमको बताता हूँ, राइट। ये अब मैं तुमको बताता हूँ, एक याद, आयनाइज फॉर्म्स ऑफ ड्रग आर ट्रैप इन द फिल्टर। एक बार फिल्टर हो गया, फिल्टर होने के बाद फिर उसको अगर बाहर आना है तो उसको बायोमेम्ब्रेन क्रॉस करना पड़ेगा। सो बायोमेम्ब्रेन वो क्रॉस, आयनाइज ड्रग कभी क्रॉस नहीं करेगा, सो वो उसके अंदर ट्रैप हो जाएगा, राइट, ओके। सो अब मैं तुमको बताता हूँ डायग्राम से। वेयर इज द डायग्राम, ओके यार, दिस इज वेरी गुड डायग्राम, ओके। रीनल क्लियरेंस के लिए ये आपका है ग्लोमरुलस, ये ग्लोमरुलस मैंने क्या बताया था, सिर्फ फ्री और अनबाउंड जो ड्रग होते हैं प्रोटीन को, जो अनबाउंड है वही फिल्टर होगा, ये फिल्ट्रेशन है, राइट। फिल्ट्रेशन के अंदर आयनाइज, और ये बताया था क्या, आयनाइज और नॉन आयनाइज दोनों ड्रग फिल्टर होंगे। सो ये आयनाइज और नॉन आयनाइज दोनों ड्रग फिल्टर हो गए फिल्टर, ओके। फिल्टर होने के बाद ये प्रॉक्सिमल ट्यूबुल में गया। सो प्रॉक्सिमल ट्यूबुल में जाने के बाद दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज द मेम्ब्रेन, राइट। सो फिल्टर होने के बाद ये आयनाइज जो है ये आगे चलते रहेगा, ये बाहर नहीं निकलेगा, आयनाइज फॉर्म, राइट। लेकिन ये सोडियम, सॉरी सोडियम बोल रहा, ये आयन नॉन आयनाइज जो फॉर्म है वो सिक्रिट, वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, वो क्या होगा, रीएब्जॉर्ब हो जाएगा इनटू द ब्लड। उसके बाद ब्लड से वो सिक्रीशन भी वो चले जाएगा इसके अंदर। सो सिक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस ऑफ नॉन आयनाइज्ड ड्रग ओनली, नॉट ऑफ आयनाइज्ड ड्रग। आयनाइज्ड ड्रग गेट ट्रैप इनटू दिस, ये बाहर नहीं आएगा। सो ये क्या हुआ, ये ट्रैप हो गया, अंडरस्टूड। सो ये रीनल क्लियरेंस होगा, सो आयनाइज है ना, सो ये इसका रीनल क्लियरेंस होगा, सो ये यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा, अंडरस्टूड। अब आगे चलते हैं हमारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की तरफ, ठीक है। अब एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन और अल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन, जो मैंने आप
ऊपर बताया वही एक थोड़ा फैक्ट है। एक, अगर हमने यूरिन को एसिडिफाई किया, यूरिन को एसिडिफाई किया, कैसे करेंगे? तो यूरिन को एसिडिफाई किया तो आयनाइजेशन ऑफ वीक बेस है, वो क्या होगा, आयनाइजेशन, उसका आयनाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज आयनाइजेशन ऑफ वीक बेस। वाई? बिकॉज वी आर एसिडिफाइंग ना, एसिड और बेस कॉन्ट्रा अलग अलग मीडियम है। सो आयनाइजेशन किसका होगा, वीक बेस का। वीक एसिड का होगा क्या, नहीं। सो आयनाइजेशन ऑफ वीक बेस, सो वीक बेस क्या होगा, निकल जाएगा, रिनल क्लियरेंस उसका बढ़ जाएगा। ओके, रिनल क्लियरेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। सो रिनल क्लियरेंस बढ़ जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, क्लियरेंस बढ़ जाएगा, एलिमिनेशन होगा। और एम्फिटामिन्स जो भी ड्रग होते हैं, उसके बाद लीडोकेन वीडोकेन, ये सारे जो ड्रग है उसके, उसको हम कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे, राइट। ये एक, दिस इज़ वन ऑफ द वे। आगे चलते हैं। अब एसिडिफिकेशन, अल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन। यूरिन का अल्कलाइजेशन अगर हो गया, हमने कर दिया, तो किसका आयनाइजेशन होगा, ये अल्कलाइजेशन है। मतलब क्या है, बेसिक बढ़ा रहे, यूरिन का बेस बढ़ा रहे। सो बेस बढ़ाया तो एसिड, वीक एसिड जो है उसका आयनाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा। बेस, वीक एसिड का आयनाइजेशन इंक्रीज हुआ, इसका मतलब वो आयनाइज हुआ, मतलब वो भी रिनल क्लियरेंस उसका बढ़ जाएगा और एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। द सेम थिंग। अब हमको एक याद रखना है, जैसे अभी इसके अंदर एक एग्जांपल ले लो इसका, एस्प्रिन का, और इसके अंदर एग्जांपल ले लो अमोनिया का, या फिर किसका एग्जांपल ले लो, सॉरी इसका ले लो, एम्फिटामिन्स का, राइट। अब किस तरीके से हम यूरिन को एसिडिफाई करते हैं, किस तरीके से हम अल्कनाइज करते हैं। अब तुमको अगर यूरिन को एसिडिफाई करना है, अब तुम बोलोगे ये ठीक है, अल्कलाइनेशन कर दिया यूरिन का, ये करो एसिडिफिकेशन करो, लेकिन कैसे करो ये नहीं बताया। सो कैसे करना है, एक सोडियम क्लोराइड अगर तुमने पेशेंट को दिया तो उसका यूरिन एसिडिफाई हो जाएगा। ओके, विटामिन सी ज़्यादा खाए गए तो उसका यूरिन एसिडिफाई होगा। क्रेनबेरी पता है तुमको, क्रेनबेरी का अगर जूस ज़्यादा पी लिया पेशेंट ने तो यूरिन एसिडिफाई हो जाएगा। सो इतना याद रखना, तुम जब पेशेंट की हिस्ट्री लेते हो तो पूछ लेना, अगर पेशेंट अगर यूरिन ज़्यादा विटामिन सी खा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उसका यूरिन एसिडिफाई हो रहा है। यूरिन एसिडिफाई हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, उसके बॉडी के वीक बेस जो है वो ज़्यादा रिनल क्लियरेंस हो रहा है उसका। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये हिस्ट्री लेते वक्त एक, इसलिए हम डाइट की हिस्ट्री लेते हैं, कोई विटामिन ज़्यादा, क्रेनबेरी जूस ज़्यादा पीते हैं, राइट। अल्कलाइजेशन, सो अल्कलाइजेशन कैसे करेंगे यूरिन का, बाइकार्ब दे दो पेशेंट को, या फिर एसिटाजोलामाइड। ये एसिटाजोलामाइड हिस्टोरिकली यूज़ करते थे, अभी यूज़ नहीं करते, राइट। सो बाइकार्ब दे दो पेशेंट को, पेशेंट का एसिडिफिकेशन जो था बॉडी में वो कम हो जाएगा, राइट। अगर समझ लो पेशेंट का, के चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। समझो पेशेंट का ब्लड का पीएच एसिडिक है। अब नॉर्मल ब्लड का पीएच कितना होता है भाई, 7.4। अगर ये 7.4 से कम है, राइट, समझ लो 7.1 है, सो एसिडिक है। अब इसको तुमको, इस पीएच को बढ़ाना है, सो तुमको क्या करना पड़ेगा, अल्कलाइज करना पड़ेगा। सो तुम क्या करोगे, सोडा बाइकार्ब दोगे उसको। अगर तुम उसको सोडा बाइकार्ब दे दो तो उसका ब्लड का पीएच 7.1 से 7.2, 7.3, कितना भी, जैसे जितना अमाउंट में दोगे उस अमाउंट में उसका पीएच एडजस्ट होते रहेगा। अंडरस्टूड? अब यहाँ पर आता है हमारा नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारा व्हाट, दिस हेपेटिक एंसेफेलोपैथी वाला। हेपेटिक एंसेफेलोपैथी में क्या होता है, अमोनिया लेवल बढ़ जाती है, ये तो मैंने तुमको एक्सप्लेन किया है, राइट, फिर से इसलिए फास्ट फास्ट बताओ। सो उसके अंदर क्या है, सो यूज़ एसिड, सो हमको क्या करना पड़ेगा, एसिड यूज़ करना पड़ेगा, राइट। अमोनिया लेवल बढ़ गया, बेस है, अमोनिया बेस बढ़ गया, सो एसिड बढ़ाना है, एसिड बढ़ाएगा तो आयनाइज हो जाएगा। सो हम उसके लिए क्या करेंगे, लैक्टुलोज देंगे। लैक्टुलोज देंगे तो वो क्या होगा, उसके जो गट बैक्टीरियाज है वो क्या करेंगे, इस लैक्टुलोज को एसिडिक एसिड, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। दिस लैक्टिक एसिड में एक बार कन्वर्ट हो गया
तो ये लैक्टिक एसिड क्या करेगा, ये अमोनिया को अमोनियम में कन्वर्ट करेगा, अमोनिया को अमोनियम में कन्वर्ट करेगा, मतलब क्या करेगा, इस अमोनिया को चार्ज लाएगा, मतलब आयनाइज करेगा। सो वंस इट गेट आयनाइज देन इट विल गेट इजीली फिल्ड, इजीली क्लियर थ्रू यूरिन, और रीनल क्लियरेंस इसका बढ़ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे है एसिडिक ड्रग। अब ड्रग तुम्हारा एसिडिक है, फॉर एग्जांपल एस्प्रिन है, राइट। अगर ये एस्प्रिन तुमने ले लिया, एस्प्रिन है, इसको अनआयनाइज, अगर ये अनआयनाइज है तो ये अनआयनाइज किस में होगा, स्टमक में। स्टमक में क्या होगा, इसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा। फिर अनआयनाइज है, स्टमक में इसका अनआयनाइज होगा, पीके उसका कितना है 3.5, मतलब क्या है, एसिडिक है। एस्प्रिन का पीके है 3.5, स्टमक का 1.1 to 2, सो पीएच कितना है 1 to 2, इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों भी एसिडिक है। तो एसिडिक है मतलब क्या हुआ, दोनों एसिड एसिड मतलब अनआयनाइज फॉर्म, सो इट विल गेट इजीली एब्जॉर्ब इन टू स्टमक। ओके, अब ये एट्रोपिन, एट्रोपिन इज व्हाट, बेस, जो मैंने ऊपर एग्जांपल बताया। सो अनआयनाइज है, अनआयनाइज कहाँ रहेगा, ये इंटेस्टाइन में, राइट, इंटेस्टाइन में रहेगा। इसका पीके कितना है 10, 10 मतलब क्या है, अल्कलाइन, सो इट विल गेट एब्जॉर्ब बेटर इन वेयर, इन इंटेस्टाइन। अंडरस्टूड। अब यही एक रीज़न है कि ये एस्प्रिन गैस्ट्रिक म्यूकोसा को डैमेज करता है। भाई अभी एस्प्रिन गैस्ट्रिक म्यूकोसा को डैमेज कैसे करता है भाई, ये बताओ, ये एक बार हम देख लेते हैं। ये के डी त्रिपाठी ने खूब अच्छे तरीके से बताया है, वो मैं तुमको बताता हूँ, राइट। सो सबसे पहले अनआयनाइज एसिड जो होता है वो गैस्ट्रिक म्यूकोसा पार कर लेगा, राइट। स्टमक में है, एस्प्रिन क्या है, अनआयनाइज फॉर्म में है स्टमक में। सो वो क्या करेगा, गैस्ट्रिक म्यूकोसा को, गैस्ट्रिक म्यूकोजल सरफेस जो होता है मेम्ब्रेन, उसका जो मेम्ब्रेन सरफेस मेम्ब्रेन होता है उसको पास कर देगा। वंस इट गेट पास इट गोज इनटू दैट सेल। सो एक बार वो पास होने के बाद आफ्टर क्रॉसिंग रिवर्ट हो जाएगा आयनाइज फॉर्म में। वो किस में रिवर्ट हो जाएगा, आयनाइज फॉर्म में। क्यों रिवर्ट होगा, बिकॉज विद इन द सेल द पीएच इज व्हाट, 7। सो विद इन द सेल pH is 7, means what, alkaline, means what, alkaline plus acid, it will get ionized. So your aspirin get ionized, so it get trapped so it get trapped into cell of mucosal cell, गैस्ट्रिक म्यूकोजल सेल में ये ट्रैप हो जाएगा वंस। सो इसको हम क्या बोलेंगे, ये ट्रैप हो जाएगा, सो ये बाहर आएगा क्या, नहीं आएगा। कैसे आएगा, एकदम स्लोली स्लोली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आएगा, एकदम स्लोली, वेरी स्लोली, वेरी स्लोली, सो दैट एसिडिफिकेशन विल हार्म दैट म्यूकोजल सेल, this mucosal cell will get damaged due to that. So this is called, this drug is get trapped, this is called ion trapping. So this phenomena is called ion trapping phenomenon called ion trapping. Okay guys, so understood. आगे चलते हैं। सो आगे अब पीएच, हाँ ये एक बताता हूँ तुमको, बेसिक ड्रग। सो बेसिक ड्रग जो होते हैं ना, ये बेसिक ड्रग इंट्रासेलुलर में बहुत ज़्यादा इनका कॉन्सेंट्रेशन होता है। बेसिक ड्रग का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो इंट्रासेलुलरली बहुत ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है बाबा, सो इसलिए ज़्यादा होता है बिकॉज बेस है, बेसिक ड्रग है। पीएच सेल कितना है, सेल का पीएच कितना है, इंट्रासेलुलर पीएच इज 7.0, राइट। ओके, सो क्या हुआ, ठीक है, ये ब्लड है, सपोज दिस इज ब्लड, राइट, लाल से निकालते ना, सपोज दिस इज ब्लड वेसल। सो ये ब्लड का जो पीएच है वो कितना बताया मैंने, 7.4। ओके, सेल का जो पीएच है वो कितना है, 7। सो कंपेयर टू ब्लड, pH of cell is what, acidic. Understood. So this is basic. Okay, so this ion once get pass into this cell, so this ion will get
converted in this will get charge or ionize. So this get trapped into this also, so it will not easily get outside. Understood? सो एसिड और बेस हो जाएगा. सो ये अगर ब्लड है तो ब्लड में जल्दी नहीं आता. ओके गाइज, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड टिल नाउ जो मैंने बताया है. सो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था गाइज. सो दैट्स वाई मैंने तुमको बोला कि अच्छे से ध्यान दो. अगर फिर भी अगर किसी ने अच्छे से ध्यान नहीं दिया है और फिर भी किसी को नहीं समझा है तो बार बार 2-3 बार देखो. ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ये सिर्फ एक चैप्टर के ऊपर मैंने तुमको कितने, एक पॉइजनिंग को तुम ट्रीट कर सकते हो, राइट, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी को ट्रीट कर सकते हो, एस्प्रिन पॉइजनिंग को ट्रीट कर सकते हो, एम्फेटामिन ओवरडोज को ट्रीट कर सकते हो. सो लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन ट्रीट. और अब तुमको समझ में आ जाएगा एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, क्या होता है, किसका होता है, कैसे होता है. एग्जैक्टली एवरीथिंग यू विल अंडरस्टूड फ्रॉम दिस. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू इन फार्माकोलॉजी. ओके, दैट्स वाई इसको मैं 2 दिन से इसके पीछे लगा पड़ा हूँ, आपको किस तरीके से समझाओ, किस तरीके से समझाओ. सो अब जाकर ये बना है तो मैंने आपको आज वीडियो बना के आप डाल दे रहा हूँ. ओके, सो डू सब्सक्राइब गाइज. अगर आपको पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो यार. ओके, जिसने किया है बहुत थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. जिसने नहीं किया है उनको भी थैंक यू, बट कर देना ज़रूर. बट प्लीज़ डू सब्सक्राइब. सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पढ़ाई करो, अंडरस्टैंड करो, लेक्चर देखो, बार बार देखो, जब तक नहीं समझता देखते रहो और अच्छे से इसको माइंड में ये लेक्चर को फिक्स करो. ये लेक्चर कभी मत भूलना. ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके गाइज, थैंक यू. देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू, गुड डे, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे होम.